Hello students, in today's video you will be learning poem The Inchcape Rock. This poem is taken from your class 12 English poem number 2.3. Before we start reading the poem, let me just tell you what exactly is Inchcape Rock. Scotland में there is a sea and in between the sea there is some sandstone reef, एक चट्टान है, तो इंचकेप उसका नाम है. So many accidents used to happen because sea के बीच में चट्टान थी, that sandstone reef was there, so many ships used to collide with it and accident used to happen. तो warn people against that reef, sandstone reef, there was a very nice man, Abbot of Aberbrothock, a nice person. He put warning bell on that, but there was a devilish hero होता है तो विलियन भी होता है, तो there was a devilish sir Ralph the Rover. तो how he made people in trouble, he put people in trouble and himself also. So this poem is about that Inchcape Rock. So let's begin with the poem, but before that let me tell you this poem is written by Robert Southey. He was born in 1774, he passed away in 1843. He was born in Bristol, England. He was the son of draper, educated at Westminster School and Balliol College, Oxford. Okay. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. Some of his short poems like The Scholar, Battle of Blame, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, etc. are very popular with the स्कूल चिल्ड्रन के लिए इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं, बहुत पॉपुलर हैं. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, ब्रिस्टॉल में पैदा हुए थे. और ये भी जो है इंचकेप रॉक इज़ अ बैलड. बैलड का मतलब होता है पोएम, स्टोरी इन अ पोएम फॉर्म. पोएम में स्टोरी होती है पूरी, बट रिटन इन अ पोएम फॉर्म, सो दैट इज़ कॉल्ड बैलड. सो इंचकेप रॉक जो है इट्स अ स्टोरी but in a poem form, so that is why it is called ballad. It's the story of the 14th century attempt by the Abbot of Aberbrothock to install a warning bell on the Inchcape, a notorious sandstone reef about 11 miles, 18 kilometers off the east coast of Angus, Scotland, near Dundee and Iffy, occupied by the Bell Rock Lighthouse. सी को से 11 miles थी, 18 kilometers सी से दूर थी. व्हाट वाज इट? नोटोरियस, यानी जो विच इज़ नोन फॉर बैड डीड्स. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट होते थे, लोगों की शिप टकरा जाती थी, ओवर टर्न हो जाती थी, एंड पीपल यूज टू लूज देयर लाइफ एंड देयर वैल्यूएबल्स ऑल्सो. सो दैट इज़ कॉल्ड नोटोरियस सैंडस्टोन रीफ. Okay. Southey was inspired by the legendary story of a pirate यानी समुद्री लुटेरा, who removed the bell on the Inchcape Rock placed by the Abbot of Aberbrothock. The poem gives us a message that those who do wrong thing will meet with due punishment. Now he is telling about Abbot of Aberbrothock कि उन्होंने वो वार्निंग बेल उस पर लगाई थी, बट देयर वॉज अ पायरेट, समुद्री लुटेरा था, एंड कैसे उसने उसको वार्निंग बेल को हटा दिया. एंड जो बुरे कर्म करता है उसका नतीजा भी बुरा होता है. एज यू सो सो शैल यू रीप. दैट इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम. अपने कर्मों का फल उसको मिल गया. सो कैसे मिल गया? लेट अस रीड द पोएम एंड लर्न द स्टोरी. द इंचकेप रॉक. नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी. द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Now in this first stanza, poet is telling about sea. There was no stir, यानी कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, न एयर में न सी में. हवाएं नहीं चल रही थी, तो सी का जो पानी था एकदम शांत था. नो स्टर यानी नो मूवमेंट इन द सी. शिप वॉज एज स्टिल एज कुड बी, इतना शांत था जैसे हो सके. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, उसको कोई भी मूवमेंट नहीं थी, मोशन नहीं था. किसको? जो शिप थी वहाँ पे. हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन. कील क्या होता है? स्केलेटन ऑफ शिप. नीचे पार्ट रहता है वो जो है उसमें पानी के अंदर एकदम सीधा था, अटका हुआ था, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं थी. क्यों? वाई इज पोएट सेइंग लाइक दिस? बिकॉज
सी में कुछ वेव्स नहीं थी, कुछ तूफान नहीं था, हैवी विंड्स नहीं थी, तो ये जो कील थी इसकी वो भी स्टेडी थी, इसका कुछ शिप को मूवमेंट नहीं थी, मतलब ऐसे हैवी मोशन नहीं था उसमें, उसको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा था। यानी इन शॉर्ट पोएट वांट्स टू से सी वॉज वेरी काम एंड क्वाइट दैट डे। इट्स नॉट दैट ही इज़ टेलिंग एवरी डे ऐसे होता है, बट ऑन अ पर्टिकुलर डे ही इज़ टेलिंग सी वॉज वेरी काम। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Rock. अभी ये जो है चट्टान के ऊपर, अब ये देखो सी, दिस इज सैंडस्टोन रीफ, चट्टान है सी के अंदर, उसके ऊपर ये जो थे बेल लगा दिया था, किसने? एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक। Let me read two stanzas together so that you understand better. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock on a buoy यानी floating object. In the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. अभी abbot of Aberbrothock एक priest थे monastery में, जैसे monks रहते हैं, कि abbot, head of abbey of monks. Abbey is a building where monks or nuns live or used to live. जैसे मंदिर में रहता है वैसे ही उनका monastery में जो रहता है monk उनके head थे। उन्होंने किया था, that means you can understand he was a very holy religious person. उन्होंने क्या किया था, एक warning bell लगाई थी इंचकेप रॉक के ऊपर, एक warning bell लगा दी थी। Why was that fitted? क्योंकि उनको लगता था कि जब भी तूफ़ान आएगा, स्टॉर्म आएगा सी में, तो वो क्या होगा, वो फ्लोट होगी और बजने लगेगी, वो मूव होने लगेगी, और उससे क्या होगा कि पीपल हु कम नियर दिस रीफ सैंडस्टोन, दे विल कम टू नो कि देयर इज़ अ डेंजर। जैसे ही बेल बजेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो चट्टान है और वो अपना रास्ता डाइवर्ट करके कहीं और चलेंगे, तो लोगों की लाइफ बच जाएगी। With this intention, Abbot of Aberbrothock had placed warning bell on this. तो उस दिन की बात बता रहे हैं कि सी एकदम शांत था, इवन शिप को कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं थी, शांत खड़ा था उसका स्केलेटन सी में, और उसकी जो वेव्स थी, विदाउट ईदर साइन ऑफ साउंड देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। ऐसे वेव्स आ रही थी, सो लिटिल दे रो सो लिटिल दे फिल, थोड़ा सा ही ऊपर वो वेव्स आ रही थी, थोड़ा सा ही नीचे जा रही थी, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था। दे डिड नॉट मूव द इंचकेप रॉक, तो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, तो उनको इंचकेप बेल को कुछ उन्होंने मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि शांत था, तो पीपल कैन ईजिली कम एंड गो, देयर इज़ नो नीड टू वार्न पीपल, बिकॉज इतना कुछ तूफान नहीं था, तो दे कैन ईजिली सी, तो उसके लिए बेल नहीं बज रही थी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. Now this blessed is Old English, this means blessed. Perilous यानी dangerous. अभी क्या था कि surge's swell क्या मतलब होता है, sudden and great rise in the level of the sea. सी में कभी पानी बहुत बढ़ जाए तो क्या होता था कि ये जो है बेल जो एबर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक ने लगाई थी मॉन्क ने, तो वो क्या हो जाता, पानी जब भी स्वेल हो जाता, ज़्यादा उसकी लेवल हो जाती, तो मैरिनर्स को यानी पीपल हु यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू सी, उनको वार्निंग बेल मिल जाती थी, क्योंकि वो बेल जो है पानी में डूबने लगती थी और उसकी आवाज़ आने लगती थी, तो दैट यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल कमिंग टुवर्ड्स इट कि देयर इज़ अ पेरिलस रॉक, देयर इज़ अ डेंजरस रॉक, एंड पीपल यूज्ड टू कम टू नो कि यहाँ पे बेल बज रही यानी समथिंग डेंजरस, एंड दे यूज्ड टू डाइवर्ट देयर route. And when they used to divert their route, what they used to do, they used to bless Abbot of Aberbrothock. क्यों? Because he had put that bell, तो लोग उसको blessing देके जाते थे Abbot of Aberbrothock को कि इनकी वजह से हम खतरे से बच गए। The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. Now poet is saying कि उस दिन की बात है कि सन एकदम ब्राइटली शाइन कर रहा था, सब एकदम खुश थे, जॉयस थे, थिंग्स थे, इवन सी बर्ड जो है वो शाउट कर रहे थे, सी के राउंड में घूम रहे थे, मज़े से आवाज़ कर रहे थे। सो एवरीथिंग वाज काम, क्वाइट, नॉर्मल एंड जॉयफुल।
The boy of the Inchcape Bell was seeing a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the Rover walked the deck and fixed his eye on the darker speck. अभी क्या था, जो इंचकेप बेल था कि वो ऐसे दिख रहा था कि एक डार्क स्पेक यानी डॉट, अ टाइनी डॉट ओशन ग्रीन में ऐसे जैसे एक सिर्फ उसको डॉट जैसे दिख रहा था. तो सर राल्फ दी रोवर कौन है? आई टोल्ड यू, अ सी पैरेट यानी समुद्री लोटेरा था. उसने उसको देखा, अ डार्क स्पेक, उसको ऐसे लग रहा था कि ये एकदम डार्क सा धब्बा है, डॉट है सी के अंदर. तो ये जो पायरेट था, ही वॉकड हिज डेक एंड फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्क स्पेक. इसकी आंखें जो है उसके ऊपर ही, बेल के ऊपर अटकी हुई थी. इसको देख के, वो बेल देख के कुछ तो भी हो रहा था, एंड ही वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट दैट डार्क स्पॉट. ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग. इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. कि अभी ये खुश था बहुत. क्यों खुश था? सीटियाँ बज रही थी, गा रहा था. He was mirthful यानी वेरी हैप्पी. बट इसका जो हैप्पीनेस था हद से ज़्यादा था, बट वो बुरे इरादे से था. विकेडनेस, जो मर्थ था इसका खुशी थी, इसके इंटेंशन बहुत बुरे थे. बुरे इंटेंशंस माइंड में रख के वो खुश हो रहा था. हिज आई वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट. Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape Rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothow. Now he told his people कि तुम बोट निकालो, और उसकी पूरी जो आंखें थी उस पर इंचकेप रॉक पे अटकी हुई थी. और उसने बोला, quoth he यानी said he, this is old English, मेरे लोगों, my men, put the boat, चलो बोट निकालो और मुझे इंचकेप रॉक के ऊपर इंचकेप रॉक की तरफ लेके चलो, और मैं एबर्ट ऑफ एबरब्रॉथो को तकलीफ़ देना चाहता हूँ. प्लेग यानी कॉज पेन और ट्रबल. मैं एबर्ट ऑफ एबरब्रॉथो को ट्रबल देना चाहता हूँ. सो ही वॉज नाइस मैन, ही वॉज पायरेट, अ विकेट मैन. द बोट इज़ लोवर्ड, द बोटमैन नाउ रो एंड टू द इंचकेप रॉक दे go. Sir Ralph bent over from the boat and cut the bell from the Inchcape boat. अभी उसके लोग उसको बोटमैन ने रोइंग करके इंचकेप रॉक की तरफ लेके गए. तो उसने क्या किया, जो ये था बेल थी, ये जो था अपने लोअर किया अपनी बोट, और इसको बेल को उसने काट दिया, निकाल दिया. Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't place the abbot of Aberbrothow. अभी इसने जैसे ही बेल को काट दिया, तो जैसे वो सी में अंदर डूब गया बेल, तो जैसे अंदर जा रहा था उसकी गर्गलिंग साउंड, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जाएगा पानी ऊपर आएगा, तो उसकी जो आवाज़ आ रही थी, गर्गलिंग साउंड आवाज़ आ रही थी पानी, जब भी पानी में नीचे चला गया. अभी नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी. जैसे ही बबल्स ऊपर आ रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो सर राल्फ दी रोवर जो पैरेट था, वो क्या बोलते हैं, अभी जो भी आएगा ये रॉक की तरफ, वो एबर्ट ऑफ एबरब्रॉथो को ब्लेस नहीं करेगा. वाई? बिकॉज उसको बेल सुनाई नहीं देगी, तो वो बचेगा ही नहीं, तो वो उसको ब्लेसिंग ही नहीं देगा. कि अभी देखो, सी सम पीपल आर डूइंग गुड वर्क, बट देर आर सम पीपल who don't want to do good work and rather they don't want others also to earn a good name. ऐसे भी लोग होते हैं, खुद तो अच्छे काम नहीं कर रहे, पर दूसरों को भी अच्छे काम करने से उसको अच्छा नहीं लग रहा है. Okay. Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the sea for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland shore. अभी क्या था, सर राल्फ दी रोवर अभी क्या किए, स्काउट यानी ट्रैवल्ड फ्रीली एनर्जेटिकली फॉर शिप्स टू रॉब. क्योंकि वो पायरेट था, अभी वो क्या करने लगा, एकदम शिप्स को लूटने लगा. जो भी वहाँ से दूसरे शिप में लोग जाते थे, उनको उनकी ज्वेलरी, उनके पैसे लूटना, क्योंकि वो समुद्री लुटेरा था. ऐसे बहुत दिनों तक वो सेल करता रहा शिप में, और उनको लूटता रहा, या कि जो उससे चट्टान से टकरा के गिर जाती, तो ये क्या करता था, उनके सब ज्वेलरी, पैसे, वैल्यूएबल सब ले लेता था. और फिर क्या किया, उसने सब जमा किया. प्लंडर्ड स्टोर यानी चोरी का सामान. बिग अमाउंट ऑफ लूटेड वेल्थ, बहुत सारे चोरी का सामान जमा किया, रिच हो गया.
देन ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। अभी क्या करता है कि वो अपना रास्ता स्टीयर्स यानी जाने की कोशिश करता है स्कॉटलैंड सी जो है उसके शोर की तरफ। वो सोचता है कि ये सब अभी मैंने बहुत पैसा जमा कर लिया, अभी मैं सी शोर पे जाता हूँ और अपने घर में जाके अपने प्लेस पे जाके और ये सब जमा करता हूँ, लेके रखता हूँ। So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. This means hath यानी has, gale यानी होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी। अभी क्या था, थोड़ा सा हेज यानी थिन मिस्ट, जैसे क्लियर नहीं था स्काई। उस दिन जिसने इसने सोचा कि मैं जा रहा हूँ सी कोस्ट की तरफ, तो उस दिन थोड़ा स्काई में हेज था यानी क्लियर नहीं था स्काई, देयर वाज अ मिस्ट एंड सन भी नहीं दिखाई दे रहा था। हवाएं ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, तूफ़ान के जैसे चल रही थी। एंड इवनिंग तक, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, शाम तक वो ऐसे पूरा ये हो गया था, डेंजरस हो गया था पूरा तूफ़ान के जैसे। ऑन द डेक रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, कोट सर राल्फ, it will be lighter soon for there is a dawn of rising moon. Okay, so now राल्फ दी रोवर वो सोचते हैं कि अभी तो इतना डार्क हो गया है, कुछ ज़मीन ही नहीं दिख रही है। तो सर राल्फ कोथ यानी ही सेज कि अभी जल्दी ही सुबह हो जाएगी क्योंकि मून दिख रहा है, अभी जल्दी ही डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी एंड कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कुछ दिख नहीं रहा था उनको अंधेरे में, प्लस हवाएं चल रही थी समुद्र में, तो उनको कुछ समझ में नहीं रहा था सी कोस्ट है कहाँ पे। बट ही वॉज थिंकिंग पॉजिटिव कि मूनलाइट है, जल्दी ही सुबह हो जाएगी और हमको सब कुछ दिखाई देगा, सन आएगा तो। कांट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर, नाउ देयर वी आर, आई कैनॉट टेल बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। सो नाउ ही सेज कांट हियर यानी आई कैनॉट हियर द ब्रेकर्स रोज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी की आवाज़ नहीं आती। मुझे क्या लगता है कि हम लोग, मी थिंक्स यानी मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है, आई एम थिंकिंग कि हम लोग शोर के पास पहुँच चुके हैं। हु सेज, ये जो पायरेट है, समुद्री पायरेट लुटेरा, वो बोल रहा है। डेवलिश सर राल्फ रोवर बोल रहे हैं, मुझे लगता है हम सी शोर के इधर शायद पहुँच गए हैं, मुझे कुछ और आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, मुझे लग रहा है कि हम सी शोर के इधर पहुँच गए हैं। फिर उसको लगता है कि काश इंचकेप बेल होती थी तो हमको पता चलता कि हम कहाँ पे हैं। इंचकेप बेल से हम कितनी दूर हैं उसकी आवाज़ से हमको पता चलता। सी नाउ ही कट इट ऑफ, बट नाउ उसको लगता है कि वो होती तो हमको कुछ सिग्नल मिलता। इसने खुद काटी, बट अभी इसको ही हिमसेल्फ फील्स की दैट शुड हैव बीन देयर, इट वाज अ हेल्प फॉर एवरीवन, इट्स नॉट दैट इट वाज नॉट हेल्पफुल टू हिम। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, though the wind had fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. अभी उनको कुछ आवाज़ सुनाई नहीं रही थी, बट स्वेल वॉज स्ट्रॉन्ग यानी पानी और ऊपर 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 आती जा रहा था और अभी हवा थोड़ी कम हो गई थी, तो ये लोग ड्रिफ्ट अलॉन्ग यानी मूविंग स्लोली, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बट क्या हुआ, उनका वेसल यानी उनकी शिप क्या हुआ, शिवरिंग शॉक थे, कांपते हुए, शिवरिंग यानी, और शॉक लग गया उसको। क्यों? क्योंकि उनकी जो शिप का टक्कर लग गया किससे, इंचकेप रॉक से। तो उन्होंने चिल्लाया, ओ क्राइस्ट इट इज़ इंचकेप रॉक, अरे ये तो इंचकेप रॉक से हमारी शिप टकरा गई, ओ जीसस क्राइस्ट, ये भगवान, ये तो इंचकेप रॉक से टकरा गई। उनको तो लग रहा था कि हम लोग आके पहुंच गए हैं सी कोस्ट के इधर। सर राल्फ दी रोवर टोर हिज हेयर, he cursed himself in his despair, the waves rush in every side, ship is sinking beneath the side. अभी सर राल्फ दी रोवर जो है, समुद्री लुटेरा जो है, पायरेट है, उन्होंने अपने बाल तोड़ने खींचने चालू किए। क्यों? वो अपने आप को कर्स कर रहा था, बद्दुआएं दे रहा था, अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उन्होंने कट कर दी थी बेल, तो अभी वो खुद ही उसमें चट्टान से टकरा गए। उसको तो लग रहा था दूसरे लोग चट्टान से टकराएंगे और सब कुछ उसको मर जाएंगे लोग, तो उनका सामान उसको मिल जाएगा। बट अभी दूसरों के लिए उसने सोचा और ख़ुद को ही उसको ऐसा हुआ, उसका खुद का ही पूरा सामान चला गया, शिप उससे चट्टान से टकरा गई। तो उसके लिए वो अपने आप को कर्स कर रहा है।
सब तरह से वेव्स आ गई और उसके शिप के अंदर चली गई और इसकी जो शिप है सिंक यानी डूब गई। टाइड के अंदर वेव के अंदर उसकी जो थी उसकी शिप डूब गई। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड could the rover hear a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell। अभी उसको तो बहुत डर लग रहा था कि क्यों, क्योंकि अभी वो मर रहा था, उसकी शिप डूब गई, पानी चला गया, तो वो डर तो था बट उसको एक आवाज़ जैसे सुनाई दे रही थी। क्या आवाज़ थी? रोवर को क्या आवाज़ सुनाई दे रही थी कि इंचकेप बेल की। अभी उधर तो था नहीं इंचकेप बेल, पर उसको लग रहा था इस डेविल को, इस शैतान को, कि तुम्हारे मौत की घंटी बज गई। तुमने ये घंटी तो निकाल दी बट अभी क्या हुआ, मौत की घंटी, नेल यानी द साउंड ऑफ अ बेल रंग सोलेमली आफ्टर डेथ और फ्यूनरल अनाउंसमेंट। तुम्हारे मौत की घंटी बज गई, तो तुमने दूसरों की जान लेनी चाहिए, तुम्हारी ही जान उसकी वजह से चली गई। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। आई टोल्ड यू कि द पर्सन हु थिंक्स बैड अबाउट अदर्स, जो दूसरों का बुरा सोचता है, जैसी करनी वैसी करनी भरनी ऐसे बोलते हैं, एज यू सो शैल यू रूप, जैसे आप दूसरों का करना चाहते हो आपके साथ भी वैसा ही होता है। आप दूसरों का बुरा सोचते हो तो आपका भी बुरा होता है। सो दिस इज़ व्हाट अ नाइस सीख मिलती है हमको, इससे मॉरल मिलती है। फ्रॉम दिस पोएम वी लर्न अ वेरी गुड मॉरल। सो दिस इज़ अ बैलाड यानी स्टोरी इन द पोएम फॉर्म, or very nice moral story. So I hope this poem is clear to you. Now let's just have a quick look on the figure of speech of this poem. Various figures of speech are used in this poem, so let's have a fast look before we end this video. Abhi first line, no stir in air, no stir in the sea. Now this is figure of speech is repetition. Why repetition? Because words no stirs are repeated for poetic effect. The ship was as still as could be. Now, as still as she could be. Now, this is personification. Why personification? Because ship has been given the human quality of a female, she. तो female quality दिया है, human quality दिया है ship को. So that is why figure of speech is called personification. Her sails from heaven received no motion. Now this figure of speech is inversion. Inversion का मतलब क्या होता है? When words are not written in correct prose order but आगे पीछे इधर उधर करके लिखा है, तो figure of speech is called inversion. Students, if you have forgotten figures of speech, you can watch my video. You can go to playlist and there you will find an English grammar. Figures of speech I have put part 1 and part 2. 2 videos I have put on figures of speech. So if you have forgotten, if you want a revision, you can visit there on my channel and you can watch these figures of speech without either sign or sound of their shock. Now this figure of speech is alliteration. Why? Because if you see sign, sound, shock, S letter is repeated in a line for poetic effect. More than one word begin with the letter S. So figure of speech is called alliteration. So little they rose, so little they fell. अभी now opposite words are used. Rose, fell. Opposite words यानी figure of speech is antithesis. When opposite ideas are used, figure of speech is called antithesis, opposite. Repetition भी है, क्यों? क्योंकि so little words are repeated. So it can be repetition also, it can be antithesis also. On a buoy in the storm it floated and swung. Now again this figure of speech is inversion. Inversion means words are not written in a correct prose order. जैसे होना क्या चाहिए था, इट फ्लोटेड एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म, बट वर्ड्स आर नॉट रिटन इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, उल्टा पुल्टा लिखा है और जम्बल्ड वे में लिखा है, तो फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इन्वर्शन. When rock was hit by surges swell. Now here if you see surges swell, SS letter is repeated or sound is repeated, so figure of speech is alliteration. Down sung the bell with a gurgling sound. Now here gurgling is a word which represents sound. So when word representing sound are used, figure of speech is called onomatopoeia. This figure of speech is onomatopoeia because gurgling जो है bell की sound है, उनकी आवाज़ है,
तो word representing sound are used. Figure of speech is called onomatopoeia. Let's come to the last page. Canst hear, said one, the breakers roar. Okay, now if you see, here is a question mark, rhetorical question. So figure of speech is interrogation. Till the vessel strikes with a shivering shock. Now if you see, strikes, shivering, shock, 3 words which start with the letter S. When words are repeated in the line for poetic effect, figure of speech is called alliteration. Oh Christ, it is inch के prop. Now this figure of speech is apostrophe. Apostrophe क्या होता है? When we address people who are not around us, who are absent or who are dead. अगर हमारे सामने कोई नहीं है फिर भी हम उसको बुला रहे हैं, जैसे ओ क्राइस्ट, ओ जीसस क्राइस्ट. अभी जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ दिस डेविलिश पर्सन शराब पर उनको बुला रहे हैं. तो व्हेन वी एड्रेस पीपल, या तो हमारे सामने नहीं है या तो मर गए. व्हेन वी एड्रेस पीपल हु आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस और डाइड, तो उनको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं एपोस्ट्रोफी. सो दिस इज एपोस्ट्रोफी, एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी. द वेव्स रश इन एवरी साइड. नाउ दिस इज पर्सोनिफिकेशन. वाई? बिकॉज वेव्स हैव बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ रशिंग. दौड़ रही हैं वेव्स, तो वेव्स नॉन लिविंग है जिसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. बट इवन इन हिज डाइंग फियर, अगेन दिस इज personification. Why? Because waves have been given human quality of dying fear, मौत की डर. So figure of speech is personification. So I hope this video was useful to you. Thank you for watching this video. If you are looking for more videos on 12th class English lessons, poems, writing skills, grammar, you can visit my YouTube channel Learn with BS. Don't forget to subscribe my channel for upcoming notification.